माधवतिथि भक्ति जननी जतन पालन करे कृष्ण बसती बसती बोले परम आदरे बोरी गौर आमार ये सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे स्वामी प्रणय भक्त संगे मृदंग वाद्य सुनीते माना अवसर सदा जाचे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे शोध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जुगल मोरती देखिया मोरा परम आनंद हाया प्रसाद सेवा करते हया सकल प्रांपच जाया जे दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख ससीमा पाया
तुलसी देखी जुड़ाय प्राण, माधव तोषणी जानी। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाय जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो ताहा। शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती करमूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु मूला। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Vishnupada Paramahansa Pujikacharya Stotroshta Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru saved the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupada Paramahansa Pujikacharya Stotroshta Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा गोकुलानंद जी की श्री गौर निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की एकादशी महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nanda gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahaguna Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadavaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज इंदिरा एकादशी है और एकादशी के दिन हम प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। तो रोज ग्रंथ भागवत होता है, एकादशी के दिन व्यक्ति भागवत है ना। तो जो व्यक्ति भागवत हैं, जो महाभागवत हैं, उनके चरित्र चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, जो साधु का व्यवहार होता है वो धर्म की स्थापना के लिए होता है। कई बार हम ग्रंथों में, श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्ति के लक्षण पढ़ते हैं कि शुद्ध भक्ति ऐसे होती है, तो हमें वो बातें थोड़ी सी किताबी लगती हैं, थ्योरेटिकल लगती हैं, बोले आज के परिप्रेक्ष्य में शायद संभव नहीं है। लेकिन जब हम प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वही सिद्धांत हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में उतारे और हमें सिखाया। प्रभुपाद सिखाते हैं कि जो वास्तव में भक्ति है अहेतु की अप्रतिहता। कोई भी भौतिक परिस्थिति शुद्ध भक्ति को रोक नहीं सकती। भक्ति में इतनी शक्ति है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति है कि हर प्रकार की रुकावटों को ध्वस्त कर सकती है, लेकिन भक्ति को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। तो ये आज के हम प्रकरण में पढ़ेंगे। तो ये प्रभुपाद लीलामृत का पहला भाग है, प्रकरण 8, और अध्याय का नाम है नई दिल्ली, वीरान में अकेले रोदन, क्राइंग इन लोनलीनेस। पूरी दिल्ली में श्रील प्रभुपाद जी अकेले कैसे संघर्ष कर रहे हैं, तो सुनेंगे। तो पीछे बैकग्राउंड ये है कि प्रभुपाद जी गुरु महाराज का तिरोभाव हो गया और उसके बाद प्रभुपाद जी एक भक्ति सारंग महाराज के साथ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और सज्जन तोषणी को सुधारने का, अभी संन्यास नहीं लिया, क्षमा करें। तो सज्जन तोषणी जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज जी की मैगजीन थी, उसको दोबारा से जारी करना चाहते हैं, उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें वो क्या संघर्ष कर रहे हैं, में रहने और भक्ति सारंग गोस्वामी के अधीन सज्जन तोषणी के लिए कार्य करने से जैसे अभय का तनाव का अनुभव होने लगा, वैसे ही पत्रिका की प्रकाशित संख्या में वृद्धि करने की अभय की अभिलाषाओं और उनके कड़े संपादकीय विचारों से भक्ति सारंग गोस्वामी भी तनाव अनुभव करने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी एक ही बीमारी थी कि मैं बड़ा सोचता था, छोटा सोच नहीं सकते थे। अभी कुछ भी अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। पूरा गौड़िया मठ भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जाने के बाद टुकड़ों में बट गया और वो अपने हाल में थे, बस थोड़ा सा कागज़ का खर्चा पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति सारंग महाराज को लिखा कि हम 500 की जगह 1000 कॉपी छापते हैं, और प्रभुपाद है ना। तो ये सब बातें जब उन्होंने पत्र में लिखी, काम चलाओ, जितना चल रहा उसको करते रहो। नहीं, प्रभुपाद चाहते थे कि मैं और इसमें सुधार लाऊं और सुधार लाऊं, इसके स्तर को आगे बढ़ाता जाऊं। लेकिन भक्ति सारंग महाराज का दूसरा दृष्टिकोण था, मुझसे मठ तो संभल नहीं रहा, ऊपर से बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, 500 की जगह 1000 कॉपी कर देता हूँ, मैं इतना फैलाऊंगा, ये फैलाऊंगा। तो उनको टेंशन हो जाता था और प्रभुपाद को ये टेंशन होता था कि मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी तनाव हो रहा है और प्रभुपाद के विचारों से, बड़े क्रांतिकारी विचार होते थे प्रभुपाद जी के कि आगे बढ़ाना है, तो भक्ति सारंग महाराज को भी तनाव होने लगा। तो क्या किया उन्होंने, अभय के पत्र के उत्तर में भक्ति सारंग गोस्वामी के सचिव रामानंद ने भक्ति वेदांत प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा से भरा एक पत्र उन्हें लिखा, लेकिन उसका इरादा था कि गौड़िया संघ से उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए। तो बड़ा एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई देते हैं वो, है ना। आप पढ़ेंगे उसको कि बहुत ऊंचा सोचते, बहुत उत्साही होते हैं, तुमको जो भी चाहिए होता था भक्ति सारंग महाराज से परमिशन लेकर ही करते थे। लेकिन भक्ति सारंग महाराज जी को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मठ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी हम उस पोजीशन में नहीं हैं, तो इनको मना कर दिया जाए। तो बड़े ही अच्छे तरीके से मना किया। ये पत्र देखिए, सुनते हैं, है ना। वैष्णव श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रभु के चरण कमलों में कोटिशा विनम्र प्रणाम।
उनके सेक्रेटरी लिख रहे हैं, है ना, भक्ति सारंग महाराज के। श्री गुरु महाराज को लिखित आपका पत्र हमें 5-10 के होते हुए भी, जिसमें प्रसाद की कठिनाइयाँ, भक्तों की गलत फहमियों और अनेक कठिनाइयाँ शामिल हैं, आपने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है वह केवल आप सरीखे उच्च वैष्णव के लिए ही संभव है। आप शिला प्रभुपाद, इस समय मतलब शिला प्रभुपाद मतलब कौन? भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज। आप शिला प्रभुपाद के एक कृपा पात्र वैष्णव हैं और शिला प्रभुपाद के सभी विशेष सहचरों के मित्र हैं। दिल्ली में गौड़िया संघ आश्रम के बहुत से भक्त नए और कम सामान्य हैं। वे आप जैसे महान व्यक्तित्व को समुचित सम्मान नहीं दे सकते, विशेषकर ऐसे उच्च विचारों को जो आप रखते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज तुच्छ विचारों का है। हमें आशा है कि इतने गुणों से समन्वित आप बहुत शीघ्र स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाएंगे और श्रील प्रभुपाद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए व्यापक प्रचार आरंभ कर देंगे। हमें संदेह है कि आप जैसे योग्य और सामान्य वैष्णव के लिए वहाँ बहुत समय तक रहना और दिल्ली के गौड़िया संघ के निरक्षर और अल्प शिक्षित भक्तों से सामंजस्य बनाए रखना संभव नहीं होगा। आप तो बहुत ही ऊंचे विचारों वाले हैं, बहुत शिक्षित हैं। अभी हमारे गौड़िया मठ में जो भक्त हैं बड़े कम शिक्षित हैं, वो इतने कल्चर्ड भी नहीं हैं, तो आपका आपस में मेलजोल बनेगा नहीं, इस ढंग से मना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप श्रीमद केशव महाराज की वेदांत समिति की गौड़िया पत्रिका और भागवत पत्रिका के संपादक मंडल के अध्यक्ष हैं, इसलिए यदि आप हमारे आश्रम में अधिक समय बिताते हैं तो वे रुष्ट हो सकते हैं। आप अपने बहुत से भक्तों के साथ वे व्रज भूमि की परिक्रमा पर निकलने वाले हैं और हमें विश्वास है उस परिक्रमा में उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए आप सभी अनुकूल एवं प्रतिकूल बातों पर विचार कर लें और यदि आप उनके संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ना करें तो हमें प्रसन्नता होगी। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि केशव महाराज जिनसे प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था वो भी व्रजमंडल की परिक्रमा में जा रहे हैं, तो उनको भी आपको सहयोग देना होगा। उनकी भी एक गौड़िया पत्रिका आप छापते हैं, तो आप हमारे यहाँ रहेंगे तो उनकी उपेक्षा होगी, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं। सज्जन तोषणी के अक्टूबर अंक के लिए कुछ लेख भेजे जा चुके हैं और कुछ और भी भेजे जा सकते हैं। हम आभारी होंगे यदि आप केशवानंद प्रभु को अक्टूबर अंक निकालने का निर्देश दे देंगे। अब आप भी जो सज्जन तोषणी पत्रिका आप छापने वाले थे ना, तो आप केशवानंद प्रभु को दे दीजिए। हमें आशा है कि श्री श्री गुरु महाराज नवंबर और दिसंबर के अंक स्वयं निकाल सकेंगे। हम उसे जनवरी से कलकत्ता स्थानांतरित करना चाहते हैं। श्री श्री गुरु महाराज वृद्ध हो गए हैं और अधिकांश समय उन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें प्रसन्नता है कि आप चैतन्य चरितामृत हिंदी में प्रकाशित करने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि हम अपनी निधि से उसके प्रकाशन के निमित्त 600 रुपये लगा सकें। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति से मिले थे दिल्ली में जो चैतन्य चरितामृत को हिंदी में छापना चाहता था। उसने कहा था मुझे आप केवल 600 रुपये का प्रबंध कर दो, मैं हिंदी में छाप दूंगा। प्रभुपाद जी ने लिखा भक्ति सारंग महाराज को कि मुझे 600 रुपये भेज दीजिए, चैतन्य चरितामृत हिंदी में छप जाएगा। तो उसके लिए मना कर रहे हैं, अभी हमारे पास इतना धन नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। चूँकि श्री श्री गुरु महाराज के पास इस समय कई प्रकार की योजनाएं हैं और उन पर उन्हें काफ़ी धन व्यय करना है, इसलिए वे उस पुस्तक को प्रकाशित करने का दायित्व नहीं ले सकते। ठीक है जी, ये भी मना कर दिया। सज्जन तोषणी के लिए भी मना कर दिया, चैतन्य चरितामृत छापने के लिए भी मना कर दिया, और ये भी बोल दिया कि आप सेवाएं हमारे साथ मत कीजिए। फिर प्रभुपाद ने ये लिखा था कि मैं चाहता हूँ मैं बड़े बड़े सरकारी अफसरों के पास जाऊँ, उनसे मिलूँ, उनसे कुछ स्पॉन्सरशिप लूँ, उसके लिए मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। प्रभुपाद की ये हालत है, मेरे पास कुछ अच्छा धोती कुर्ता भी नहीं है कि मैं इन लोगों के पास जा सकूं, तो उसकी मुझे परमिशन दे दीजिए। तो उसके जवाब में क्या लिखते हैं? केशवानंद प्रभु ने लिखा कि आपके कपड़े फट गए हैं और इस मंदिर की निधि से आप एक जोड़ा कपड़े खरीद लीजिए, और यदि भक्त मूर्खतावश आपके विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो कृपा करके उन्हें क्षमा करें। हस्ताक्षरित वैष्णव के सेवक श्री रामानंद दास। अब सोचिए कैसा लगा होगा प्रभुपाद जी को ये जब पत्र मिला होगा। प्रभुपाद जी अपनी योजनाएं बनाना चाहते हैं, अपने गुरु महाराज की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, प्रचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ से उनको सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल रहा, और बड़े तरीके से
बड़े मीठे शब्दों में उनको बोला कि आप साइड में हो जाइए, है ना। अब हम आपकी जो योजनाएं हैं बहुत ऊंची हैं, हम लोग बड़े साधारण लोग हैं, तो हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे, तो बेटर है पीछे हो जाइए आप। प्रभुपाद को कैसा लगा? आप आगे लिख रहे हैं, यह सच नहीं था कि अभय को केशव महाराज की परिक्रमा में नेतृत्व करने के लिए बुलाया जा रहा था। यद्यपि रामानंद को अभय को गौड़िया संघ छोड़ने का संकेत देने के लिए यह अच्छा बहाना था। इस प्रकार केशव महाराज और भक्ति सारंग महाराज के आश्रमों में एक निष्ठापूर्ण सदस्य के रूप में रहने के पश्चात अभय फिर अकेले हो गए। अब प्रभुपाद जी के पास रहने की कोई जगह नहीं है, पूरी दिल्ली में प्रभुपाद अकेले हैं। बिना किसी आय के या संस्था की शरण के अभय दिल्ली में भिन्न भिन्न घरों में रहने लगे। जहां से निमंत्रण मिलता वहां एक सप्ताह रहते और फिर अन्यत्र चल देते। भोजन, कपड़ा और आवास की दृष्टि से अभय के लिए यह सबसे कठिन समय था। अब सोचिए, जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, कुछ भी नहीं है। ये नहीं मालूम कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, ये नहीं मालूम रात को सोने को कहाँ मिलेगा, अपना कोई स्थान नहीं है, कोई संस्था नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं। अब देखिए, बचपन से उन्हें मनमाना भोजन और अच्छे कपड़े मिलते थे और आवास की कोई समस्या नहीं थी। वे अपने पिता के चहेते पुत्र थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उन्हें विशेष स्नेह और मार्गदर्शन मिला था। लेकिन अब अभय कभी कभी अपने को अकेला अनुभव करते थे। कितना संघर्ष, आप सोचिए। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ऐसे किसी परिवार से थे, बहुत ही अच्छे परिवार से थे, अच्छे कपड़े डालते थे, अच्छा भोजन करते थे, मनमाना भोजन करते थे, और आज ऐसी स्थिति है, उनको पता नहीं आज मैं रात को कहाँ रुकूंगा, क्या खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप कल्पना कीजिए, क्या क्या हम लोग तो इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अपना घर है, कपड़े हैं, खाने को है, ये तो है ही है। उसके बाद सोचेंगे वो सुविधाएं भी नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने कुछ अपराध किया है, कुछ गलती की है। क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? अपने गुरु की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अपना बिजनेस सारा बंद करके, अपना घर छोड़ के पहले वृंदावन आए, फिर सब कुछ प्रयास किया, नहीं कहीं से कुछ सहयोग नहीं मिल रहा। तो कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी उत्साह गिर जाएगा। कितने अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। गृहविहीन होकर अभय दिल्ली में एक अस्थाई आवास से दूसरे अस्थाई आवास का चक्कर लगाने लगे। कभी एक विष्णु मंदिर में, कभी कपूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक कमरे में। किंतु वे अनुदानकर्ता खोज रहे थे, भगवत गीता से प्रचार कर रहे थे और लिख रहे थे। उनका लक्ष्य एक स्थायी निवास पाना नहीं था, वे अपने दिव्य साहित्य का प्रकाशन चाहते थे और कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए एक विशुद्ध सशक्त आंदोलन की स्थापना करना चाहते थे, या ऐसे ही किसी आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। कितना अद्भुत चरित्र है प्रभुपाद जी का। आप देखिए, ऐसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी कितना उत्साह बना के रखा हुआ है। ऐसे निराशाजनक परिस्थितियों में उनका ये पहली प्रायोरिटी नहीं कि मुझे कुछ रहने की जगह तो मिल जाए, भाई कुछ खाने को तो पता चले, तब आगे सोचूंगा। ऐसी परिस्थितियों में भी वो क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से प्रचार किया जाए, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं सोच रहे कि अब पहले मेरे अपने जगह पक्का कर लूँ फिर मैं देखूंगा। तो ये है कीर्तनीय सदा हरि। भगवत गीता में भगवान महात्माओं के लक्षण क्या बताते हैं? महात्मा सुमां पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूताति अव्ययम। तो कैसे अनन्य मनसा वो कीर्तन करते हैं? अगला श्लोक क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। जैसे मर्जी परिस्थिति हो वो कीर्तन करते रहेंगे, भगवान का गुणगान करते रहेंगे। यतन्तश्च दृढ़वता, उसके लिए क्या चाहिए? यतन से, दृढ़ता से यतन करना है। तभी साधुओं को बोला जाता है यति। जैसे रामानुजाचार्य को बोलते थे यति राज। हम जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जतिपुरा, जातिपुरा, वहाँ पे माधवेंद्रपुर जी जाते थे। तो जति यानी कि साधु। आगे संसार में हमें भक्ति करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी ने श्रीमती राधा रानी की शरण ली है, देवीं प्रकृति आश्रिता। इसलिए जैसे मर्जी परिस्थिति हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इससे ज़्यादा निराशाजनक परिस्थितियाँ क्या होंगी, लेकिन ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में भी उत्साहित रहना, है ना, ये हमने सीखना है। साधारणतः इस संसार में रहते रहते जो हमारा मन होता है वो हमेशा निराशा की ओर ही ले जाता है। मन का जो स्वाभाविक स्वभाव है, स्पॉन्टेनियसली मन निराशा की तरफ जाता है, बड़ी मुश्किल से उसको पंप अप करना पड़ता है, नहीं पॉजिटिव हो जाओ। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में तो निराश होना ही होना था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी वास्तव में उत्साहित हैं, और ये वास्तविक उत्साह है। कई बार जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है तो हम उत्साहित रहेंगे। और प्रभुपाद तो अपने लिए भी नहीं चाह रहे कुछ, प्रभुपाद तो आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तब भी कुछ उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी क्या हैं, पूरे उत्साहित हैं। अभय ने कई पुस्तकों की सूची बनाई जिन्हें वो प्रकाशित करना चाहते थे। तो यहाँ हम क्या सीख सकते हैं, मैं सोच रहा था कि ऐसी निराशाजनक परिस्थितियाँ भी हमारे जीवन में आ सकती हैं और आती हैं संसार में। उस समय भी अगर हम अपनी सोच अपने ऐसे ना करते हुए गुरु के आदेशों पर ध्यान दें और मिशन को आगे बढ़ाने, ये वास्तव में मतलब है कीर्तनीय सदा हरि, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो। तो एक बार मैं चैतन्य चरण प्रभु का जो गीता डेली आता है उसमें बहुत सुंदर उन्होंने आर्टिकल लिखा था, तो याद आ गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ हमारी कई बार खराब होती हैं तो हमारा मन क्या करता है, उस प्रेजेंट को एटर्नलाइज कर देता है, उसको बनाता शाश्वत ऐसा ही चलेगा, और हम परेशान हो जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और हम सोचते हैं कि शाश्वत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा ना करके वो बता रहे हैं कि एटर्निटी को प्रेजेंट में ले आओ। एटर्निटी या हमारा क्या शाश्वत, हमारा स्वरूप क्या है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उसको वर्तमान में ले आओ। यानी कि हमेशा हम ये याद रखेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ और इस परिस्थिति में मैं क्या बेहतर सेवा कर सकता हूँ, बस इस पे ध्यान रखेंगे तो आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे। इस पे ध्यान रखते रहेंगे ये परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, और आगे कब ठीक होंगी, ऐसी ही चलती रहेंगी तो चिंता बढ़ती रहेगी, और फिर आगे क्या होगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर क्या होगा। ऐसा ना सोच के जैसी परिस्थिति हैं इस परिस्थिति में मैं बेस्ट सेवा क्या कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी के पास रहने की जगह नहीं है, खाने का मालूम नहीं है, उसकी ना चिंता करके प्रभुपाद जी एक सूची बनाने कौन कौन सी किताबें छापनी है, मैंने तैयारी पूरी रख रहे हैं कि कहीं से भी कोई स्पॉन्सर मिलेगा, मेरे पास तैयारी लिस्ट पूरी तैयार होनी चाहिए कि इस किताब को में इतना धन चाहिए, इस किताब को इतना धन चाहिए, अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। कितनी विशेष बात है, और इससे हमेशा हम उत्साहित रहेंगे। तो क्या सूची बनाई, चैतन्य चरितामृत हिंदी 2000 पृष्ठ, गीतोपनिषद अंग्रेजी 1200 पृष्ठ, साइंस ऑफ डिवोशन अंग्रेजी 300 पृष्ठ, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट अंग्रेजी 300 पृष्ठ, मैसेज ऑफ गॉड हेड अंग्रेजी 300 पृष्ठ, भागवनेर कथा बंगाली 50 पृष्ठ। ये 6 किताबों की सूची बना ली प्रभुपाद ने, मुझे लिखनी है। लेकिन पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उन्हें अनुदान करता चाहिए थे, यानी कि स्पॉन्सर्स चाहिए थे। वे धनाढ़ लोगों से उनके घरों और कार्यालयों में मिलते थे और उन्हें अपनी पांडुलिपियाँ दिखाते थे और तथा अपना उद्देश्य समझाते थे। उनके पास अनुदानकर्ताओं की एक सूची थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने सहायता की, और यदि कहीं से अनुदान मिला भी तो वह या तो 10 रुपये या 5 रुपये। कभी कभी उन्हें सराहना या समर्थन के पत्र प्राप्त होते थे। एक सराहना पत्र बिरला मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अवकाश प्राप्त अधिशास्त्री अभियंता राय बहादुर नारायण दास से आया, जिन्होंने एक लोकप्रिय गुरु माँ आनंदमयी की उपस्थिति में अभय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक पाठ में भाग लिया था। श्री चैतन्य चरितामृत के उनके हिंदी संस्करण से अभय के पाठ से प्रभावित होकर माँ आनंदमयी ने 50 रुपये का अनुदान दिया और अभय को सुझाव दिया कि वे सुप्रसिद्ध साधु श्री हरि बाबा से मिलें, जो अस्पताल में बीमार पड़े थे। नारायण दास के साथ अभय हरि बाबा से मिले और नारायण दास ने बताया कि अभय का पाठ सुनकर वे भाव विवल हो गए थे। इस बीच नारायण दास का झुकाव अभय की सहायता की ओर हो रहा था और दिसंबर में उन्होंने एक पत्र लिखा इस संकेत के साथ कि हर एक को चाहिए कि श्री AC भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा
हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लिखित विभिन्न पुस्तकों के लिए सफल प्रकाशन में हाथ बटाएं। मैं उनके इस श्रेष्ठ प्रयत्न की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। चिट्ठी किसने लिखी है? नारायण दास जी ने, है ना। आप जाएंगे दिल्ली में तो एक दिल्ली में उसमें बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बिरला मंदिर है ना। तो उसके ट्रस्टी थे ये नारायण दास जी। अभय इस पत्र को और ऐसे अन्य पत्रों को संभाव्य समर्थकों को दिखाते। दिल्ली में मंत्रियों, न्यायाधीशों, वकीलों, व्यवसायियों और धार्मिक कार्यपालकों से मिलना कठिन नहीं था। कोई ना कोई अभय की बात गंभीरतापूर्वक सुनने को हमेशा मिल ही जाता और कभी कभी सहायता देने को भी तैयार हो जाता। इस प्रकार अभय गौड़िया संघ द्वारा प्राप्त 2 धोतियों और कुर्तों से काम चलाते हुए व्याख्यान देने और लोगों को मनवाने की अपनी योग्यता के बल पर, लेकिन बिना किसी सहायता और स्थायी निवास के निर्भीक भाव से अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। लेखन और उनके प्रकाशन के में अभय के प्रयास का केवल आधा भाग लगता था। शेष आधे को वे लीग ऑफ डिवोटीज के समान एक विश्व आंदोलन की स्थापना में लगा रहे थे। नारायण दास के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा, क्या कोई ऐसा तरीका निकल सकता है कि वे बिरला मंदिर के तत्वाधान में कार्य कर सकें, जो दिल्ली के सबसे बड़े और धनी मंदिरों में से एक था। अभय ने प्रस्ताव किया कि वे अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार के कार्यभारी बना दिए जाएं, भारत और विदेश दोनों के लिए। चूँकि नारायण दास अपने को सनातन धर्म का अनुयायी मानते थे, इसलिए अभय ने उन्हें पत्र लिखकर समझाया कि भगवत गीता के उपदेशों में सनातन धर्म का वास्तविक रूप मिलता है। अभय के पास इस संबंध में बहुत से विचार थे कि जीव मात्र का शाश्वत धर्म होने के नाते सनातन धर्म का प्रसार और व्यवहार कैसे हो सकता है। केवल उन्हें नारायण दास की सहायता की आवश्यकता थी। तो प्रभुपाद हर संभव प्रयास कर रहे थे। गौड़िया संघ से उनको सहयोग नहीं मिला तो बोले मैं बिरला मंदिर में की मैनेजमेंट में आ जाता हूँ और मैं अंग्रेजी में प्रचार करूँगा भारत में और विदेशों में भगवत गीता का, है ना। कुछ प्रभुपाद सपोर्ट ढूंढ रहे थे। तो क्या लिखते हैं वो, मैं 40 शिक्षित युवकों को इस दिव्य प्रकाशन में प्रशिक्षित करना चाहता हूँ और प्रचार कार्य के लिए उन्हें विदेशों में भेजने को तैयार करना चाहता हूँ। आप सोचिए कितना प्रभुपाद बड़ा सोच रहे हैं। यूथ फोरम के कर रहे हैं, है ना, कि 40 युवाओं को इकट्ठा करूँगा और उनको ट्रेन करके विदेशों में भेजूँगा। अपने पास रहने की जगह नहीं है, एक किताब भी नहीं छपी, कुछ नहीं है, पहने को कपड़ा भी नहीं है, रहने की जगह भी नहीं है, और इतना ऊंचा सोच रहे हैं कि 40 युवाओं को मैं लेकर ट्रेन करके विदेशों में भेजूँगा। मैं तुरंत एक अंग्रेजी पत्र आरंभ करना चाहता हूँ या अपने पत्र बैक टू गॉडहेड का पुनः प्रकाशन इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की शैली पे करना चाहता हूँ। मैं एक संकीर्तन दल संगठित करना चाहता हूँ जिसमें केवल गायक और संगीतज्ञ ही नहीं वरन ऐसे लोग होंगे जो साधना या आत्मसिद्धि का अभ्यास करते हों। ये उन्होंने प्रपोजल दिया। किसको दिया है प्रपोजल? बिरला टेम्पल की मैनेजमेंट में, है ना। अभय ने वादा किया कि ज्यों ही पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है वे अपने आदमियों और सामान के साथ प्रचार के लिए विदेशों में जा सकेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बाह्यता वे बड़ी कठिनाई में थे। कृपा करके उपयुक्त की व्यवस्था शीघ्र करा दें और रहने के लिए मुझे उचित स्थान दे दें। मैं अस्थायी आवास से अगले सोमवार तक जरूर चले जाना चाहता हूँ। बिरला मंदिर के निर्देशकों ने अभय का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभय ने उनका ध्यान अपने कार्यक्रम में लगाए रखने के विचार से एक दूसरा उपाय सोचा। वे लीग ऑफ डिवोटीज में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए बिरला मंदिर में एक सभा करेंगे। वे दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष श्री RN अग्रवाल के पास गए, जो यह जानकर कि सभा में बहुत से सम्मानित नागरिक उपस्थित होंगे उसकी अध्यक्षता करने को तैयार हो गए। अभय ने 22 दिसंबर की तिथि निश्चित कर दी और 500 घोषणा पत्र और 200 आमंत्रण पत्र छपा दिए। सो ये है, नेवर कभी गिव अप नहीं किया प्रभुपाद जी ने। हर जगह से उनको मनाही किया जा रहा था तो प्रभुपाद हमेशा एक
नए प्लान के साथ तैयार होते थे। तो बोले ठीक है, आप मेरे को अपने मैनेजमेंट में नहीं ले रहे, वो सपोर्ट नहीं दे रहे, तो मैं एक लीग ऑफ डिवोटीज़ का कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ बिरला मंदिर में। तो उसमें जो म्यूनिसिपल कमेटी थी उनके अध्यक्ष से मिले और बोला कि आप, क्योंकि अगर म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष उस मीटिंग को चेयर करेंगे तो काफ़ी सम्मानित बात होगी, तो बहुत से लोग उसमें आएंगे। तो प्रभुपाद ने 500 घोषणा पत्र और 200 आमंत्रण पत्र छाप दिए। अपने घोषणा पत्र में निष्पक्ष स्वर में उन्होंने कहा, ईश्वर की अनुकंपा से दिल्ली विश्व संस्कृति सम्मेलन का केंद्र बनता जा रहा है। रूस और भारत दोनों देशों के नेताओं ने हाल ही में सभी राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक संपर्क की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। अभय ने कहा, किंतु सर्वोच्च संस्कृति विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए सर्वोच्च सांस्कृतिक साधन भारत से मिलते हैं। अभय ने काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, भारत स्काउट्स, द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की बैठकों के साथ लीग ऑफ डिवोटीज की सभा की भी घोषणा आप प्रकाशित हुई। अगर आपको ध्यान हो, आप पहले अगर हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ते होंगे तो उसमें एक कॉलम आता था, है ना, टुडेज प्रोग्राम, कहाँ पे पूरी दिल्ली में क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो उसमें ये सब आया, रोटरी क्लब की मीटिंग है, भारत स्काउट्स की मीटिंग है, और इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की मीटिंग है, साथ में आया लीग ऑफ डिवोटीज़। लीग ऑफ डिवोटीज़ बिरला मंदिर में भी ही मीटिंग है। लीग की बैठक प्रोफेसर एच चांद द्वारा संचालित कीर्तन से आरंभ हुई और तब लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक और सचिव AC भक्तिवेदांत ने अपने आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उसके बाद नारायण दास का भाषण हुआ और तत्पश्चात उन्होंने संस्थापक सचिव की ओर से कई प्रस्ताव पढ़े, इस बात को प्रमाणित करते हुए कि वहां उपस्थित लोगों का समर्थन लीग ऑफ डिवोटीज को प्राप्त है और वे संस्तुति करते हैं कि भारत सरकार भी गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति का प्रचार करने के लिए इस संस्था को समर्थन दे। प्रस्तावों को पारित करने के बाद कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ सभा समाप्त हुई। अभय को विश्वास था कि यदि उनके शुभेच्छुकों और मानवतावादी साथियों का उन्हें बृहद पैमाने पर समर्थन मिला तो वे भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति आंदोलन की सृष्टि कर सकेंगे। किंतु उनका कार्य तो लोगों को जिस किसी को भी हो सके कृष्णा भानामृत प्रस्तुत करना था। परिणाम तो कृष्ण के हाथ में था। अभय को मालूम था कि बिरला मंदिर की सभा में भाग लेने वालों में से अधिकतर के उस बैठक के बाद अच्छे इरादे नहीं बने रहेंगे, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं थे। अपने सारे अथक प्रचार कार्य में वे दार्शनिक प्रसन्नता बनाए रखते थे। एक अर्थ में वे पूर्णतः संतुष्ट थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से कार्य करने में उन्हें प्रसन्नता थी। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हम लोग कई बारी जीवन में क्या सफलता है इसको समझ नहीं पाते। हर व्यक्ति संसार में सफल बनना चाहता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम सफलता किसको कहते हैं। अक्सर हम उसको सफलता मानते हैं जो समाज के लोग जिसको माने, जिसके के पास ज़्यादा धन हो, ज़्यादा पद हो, ज़्यादा अनुयायी हो, हाँ जी ये सफल है। और हम भी ऐसा समाज की दृष्टि में सफल दिखना चाहते हैं। अगर बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो प्रभुपाद बिल्कुल असफल थे, कहीं भी उनका प्रयास कुछ सफल नहीं हो रहा था। लेकिन प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि दार्शनिक प्रसन्नता, फिलॉसफिकली प्रभुपाद अंदर से बहुत संतुष्ट थे, बहुत प्रसन्न थे। प्रभुपाद के लिए सफलता का क्या मापदंड था कि मैं अपने गुरु महाराज के लिए कितना प्रयास कर रहा हूँ, और वो प्रयास अथक प्रयास है। तो भक्ति में कभी विफलता नहीं है। अगर हम सिंसियरली गुरु की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो ये अपने आप में सफलता है। हो सकता है बाहरी दृष्टिकोण से सफलता ना मिले, प्रचार कार्य में कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रयास इतने जबरदस्त चल रहे हैं, वो सफलता है। तो सफलता का अर्थ क्या है कि हम कितना गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहते हुए प्रयास कर रहे हैं, ये सफलता है। हो सकता है हमें बाहरी रूप से सफलता मिल जाए, लेकिन आंतरिक रूप से हम गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर नहीं हैं, तो वो सफलता नहीं है, वो सफलता नहीं है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है अपनी चेतना को उत्कृष्ट करना।
हम लोग सोचते हैं इस संसार में जो सबसे गलत धारणा है कि हमारे जीवन में जो खुशी है, आनंद है, वो हम कितने सफल हैं, हमारे पास कितना सुविधाएं हैं, उस पर निर्भर करता है। वास्तव में हम देखेंगे कि इस संसार में जितने भी सफल लोग हैं, कई बार अंदर से वो बहुत दुखी हैं। एक बहुत अमेरिका के हॉलीवुड के कॉमेडियन हैं जिम कैरी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, मैं चाहता हूँ इस संसार का हर एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाए, तब उनको मालूम चलेगा कि प्रसिद्ध होने के बाद क्या महसूस होता है। वो चाहते हैं नहीं, हम देखते हैं, हम कई बड़े बड़े जैसे माइकल जैक्सन वगैरह थे, तो वो अपने इंटरव्यू में बोलते थे कि मैं एक बच्चे की तरह सोता हूँ। कैसे बच्चे की तरह सोता हूँ? बार बार रात को उठ जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, है ना। और परम पूज्य भक्ति थी स्वामी महाराज जाया करते थे मोहम्मद अली के पास, है ना, जो बॉक्सर था, और उसको वो काउंसिल करते थे। तो मोहम्मद अली जब वो सुबह उठता था तो बाहर उसके दर्शन के लिए इतनी भीड़ होती थी, जैसे दर्शनार्थी के लिए भीड़ होती है ना यहाँ पे, तो मोहम्मद अली झरोखे में आएगा, बालकनी में आएगा, उसकी भीड़ होती थी, और सब उसके वेटर आके बोलते थे बाहर बहुत भीड़ है, सब वेट कर रहे हैं। और वो इतना कुंठित होता था, उसकी इच्छा नहीं होती थी मैं लोगों को जाके देखूं, वो अंदर से इतना परेशान होता था, फिर भी उसको बाहर जाके यूं करना पड़ता था और अंदर के गालियां देता था वो, है ना। तो प्रसिद्ध था, अनुयायी थे, नंबर 1 बॉक्सर था, लेकिन बहुत दुखी था। तो हम लोग जिसको इस संसार में सफल मानते हैं वो वास्तव में सफलता नहीं है। हमारा जो आनंद है, हमारा जो सुख है, वो हमारी चेतना पर निर्भर करता है। हमारी चेतना कितनी उत्कृष्ट है, हमारी कॉन्शियसनेस कितनी एलिवेटेड है, उसके हिसाब से हमें आनंद मिलेगा। हमारे जीवन में सुख हमारी चेतना पर निर्भर करता है, ना कि बाहर के लोगों के क्या उनके मेरे बारे में ओपिनियन है उस पर निर्भर करता है। कि ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं जी, हम कितने सफल हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, कितने वो हैं, इससे मेरी आनंद निर्भर नहीं करता। मेरा आनंद मेरी चेतना पर निर्भर करता है। और मनुष्य जीवन मिला है अपनी चेतना को विकसित करने के लिए, और चेतना विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन को समर्पित करना। वो प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं। कोई सफलता नहीं मिल रही, लेकिन प्रभुपाद जी अपने आप में संतुष्ट हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद प्रभुपाद जी को सफलता भी मिली तो प्रभुपाद कोई अहंकार नहीं आया, प्रभुपाद वैसे के वैसे ही रहे, है ना। ये हम गीता में जो पढ़ते हैं कि बिल्कुल समभाव, इक्विपॉइज्ड, है ना। तो ये एक धीर व्यक्ति के लक्षण है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर हमने वास्तव में भगवत धाम जाना है तो सबसे पहला गुण जो हमें विकसित करना है धैर्य, धीर, है ना। जैसे कि बताते हैं भगवान गीता में पहले 2:30 में क्या बताते हैं? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम् जन्म तथा देहांतर प्राप्तिरत धीरस् तत्र न मोह्यति। फिर अगला श्लोक क्या है? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपान नित्यतां तितिक्षस्व भारत। जो धीर व्यक्ति है इस संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगा। उसको ऐसे समझेगा जैसे कि सर्दी और गर्मी का सीजन आ रहा है और जा रहा है। लेकिन अगला जो 15 नंबर का श्लोक है उसमें क्या बताते हैं? यम ही ना व्यथंती ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखा धीरा स अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख में समान है ये धीर व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करने के योग्य है। तो जब तक हमारे अंदर ये धैर्य नहीं लाएंगे, चाहे बाहरी रूप से सफलता मिले या विफलता मिले, मैंने देखना है कि मेरा आंतरिक रूप से मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं कितना गुरु की कृपा पर निर्भर हो रहा हूँ, ये मेरी सफलता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे विकट परिस्थितियों में भी पूर्ण रूप से अपने गुरु पर आश्रित महसूस कर रहे हैं, संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, हतोत्साहित महसूस नहीं कर रहे। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास सब अनुकूल वातावरण है, फिर भी पता नहीं क्यों आध्यात्मिक क्लेश हमें सताता है, हमारा मन उदास रहता है। पूछो भी क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। और हमें मन हतोत्साहित होने के कितने ही बहाने देगा। आज प्रसाद लेट हो गया तो हम हतोत्साहित हो गए, जैसा हम प्रसाद चाहते हैं वैसा नहीं मिला तो हतोत्साहित हो गए। किसी भक्त ने हमें प्रेम से हरे कृष्णा नहीं बोला तो हतोत्साहित हो गए। हमारी योजना स्वीकार नहीं गई तो हतोत्साहित हो गए। हमारे पास तो कई बहाने हैं एंथुसियाज्म लूज करने के लिए। और प्रभुपाद के पास सब कुछ विकट परिस्थितियाँ होते हुए भी प्रभुपाद क्या हैं? उत्साहित हैं। तो ये हमें आज प्रभुपाद अपने चरित्र से सिखा रहे हैं
कि भक्ति में हमेशा उत्साहित बने रहें। और उत्साहित रहने का तरीका क्या है कि अपने आचार्यों के जीवन को याद रखें, उनके इंस्ट्रक्शंस को याद रखें। वो हमारा शाश्वत स्वरूप है, उस पर ध्यान दें। जो आसपास की परिस्थितियां हैं ये तो परिस्थितिजनक है, ये आएंगी चली जाएंगी, इसको इतना ज़्यादा महत्व ना दें। इसमें जैसी परिस्थितियां हैं उसमें जो हम बेस्ट सेवा कर सकते हैं, जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करें। तो जितना हम गुरु और कृष्ण की कृपा पे आश्रित रहेंगे उतना हमारी चेतना विकसित होगी। तो परिस्थितियों पे हमारे आनंद निर्भर नहीं करता, हमारा आनंद हमारी अंतरंग चेतना पर निर्भर करता है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, कोई सुझाव, कोई करेक्शन? ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद लीलामृत की, निताय गौर प्रेमानंद।